इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज ऑन जावा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग इन जावा। व्हाट इज स्ट्रिंग क्लास? स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है, सुना है। व्हाट इज एग्जैक्टली इम्यूटेबल? स्ट्रिंग क्लास में कुछ मेथड्स है, उस मेथड के बारे में भी समझेंगे। एंड इक्वल इक्वल इक्वल्स मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, तीनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में लास्ट देखो। इंटरव्यू में कैसे बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी चीज़ें इंग्लिश में। इंग्लिश रहने वाला है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंटरव्यू में पूछा आपको, हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का आज 12वां दिन है। ब्रेक हुआ था बट कंटिन्यू फिर हुआ है, राइट। ब्रेक इसलिए होता है ताकि कंटिन्यू भी हो जाए। So what is string exactly? See, string is a non-primitive data type in Java, as well as string is a final class in Java. It is a final class. We cannot extend the string class. Why? It is final. All final classes we cannot inherit. Final मतलब final भाई, last implementation. India Pakistan final. उसके बाद नहीं. Okay, now string class is a final class. What is string? String is a sequence of characters which are enclosed in double quotes. डबल कोट के अंदर अगर आप कुछ कैरेक्टर का सीक्वेंस लिख रहे हो, उसको बोला जाता है string. String is a sequence of character which are enclosed in double quotes. Then array of characters is also called string. कैरेक्टर का array बनाओ, उसको भी string ही कहा जाता है, ladies and gentlemen. Okay. Again, then see, there are, उससे पहले ओके ठीक है, ये अभी देखते हैं। There are 4 ways to create string in Java. 4 तरीके स्ट्रिंग बनाने के। पहला तरीका, string we can create by using string literal. That means string name equals to Ram. It's called string literal. Then we can create string by using new keyword. String s1 equal to new string. उसके अंदर भी string दे सकते हो, and that is a new keyword. By using new keyword we can also create the string, because string is a class. We can create the object and create the string. Simple. But there is a difference in between that when you create the string using string literal and when you create the string using using new keyword. There is very important difference. I am going to talk. Just wait. Then we can create the string by using string builder class. String builder, we can create the object of string builder. String builder ESB new string builder. We can create the string. We can create the string by using string buffer also. String buffer SB equal to new string buffer. Create the string. So 4 ways we have to create the string in Java, but each and every way represent the different types of behavior. So you need to understand. First of all, let's talk with what will happen if I create the string using string literal. देखो ध्यान से सुनो, अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके, तो स्ट्रिंग के लिए जावा implement a special memory area to store the string in Java, and the name of that area is called string constant pull. Now question came into the mind, what is string constant pull? होता क्या है भाई, ये होता क्या है? See, string constant pull is a memory area where string will get the memory. string को memory मिलती है, मराठी हो रहा था, string को memory मिलती है ACP, and that ACP area present in the heap memory area. heap पता है, heap के अंदर होता है ACP, हीप के अंदर होता है। पहले ही मेथड के अंदर था, वो छोड़ दो, अभी किसके अंदर है, हीप एरिया के अंदर एसीपी है। सर हमें हीप भी पता नहीं है, डोंट वरी, जेवीएम के अंदर ही सारे मेमोरी एरिया होते हैं। सर हमें जेवीएम ही पता नहीं, अरे क्या कर रहे हो यार, फिर काय का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, यू डोंट नो अबाउट जेवीएम। इस सीरीज को फॉलो करो यार, पहले दिन से जेवीएम वगैरह सब कुछ कवर किया है, अभी हम स्ट्रिंग तक पहुंच चुके हैं। ऐसा मत करो यार, जेवीएम पता नहीं है, जेवीएम जावा में होता है, सर जावा ही पता नहीं है। अरे भाई फिर what are you doing here? You need to go somewhere. आपको कहीं तो जाना पड़ेगा यार, यहाँ पे क्या करो, जाओ ही पता नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, सबको पता है, राइट। ओके, सो नाउ जेवीएम के अंदर ये सारे मेमोरी एरिया होते हैं जहाँ पे मेमोरी मिलती है। हीप के अंदर जितने भी आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे न्यू कीवर्ड का यूज करके, सारे हीप के अंदर जाते हैं। सो सर एसीपी के अंदर क्या जाता है, व्हेन यू क्रिएट द स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, डायरेक्टली दैट स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन द एसीपी। बट सर अगर मैं न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बनाऊं तो, सी अगर आप न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बनाओगे तो 2 ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, एक होगा हीप के अंदर, वाई न्यू कीवर्ड यूज हुआ है, एक होगा लिटरल के अंदर, बिकॉज लिटरल भी तो क्रिएट हो रहा है। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, न्यू कीवर्ड भी है कंस्ट्रक्टर के अंदर, लिटरल भी है। सो दैट्स व्हाई 2 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द केस ऑफ न्यू कीवर्ड, 1 ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन द केस ऑफ लिटरल। सर जब हम बफर और बिल्डर यूज करेंगे तब
तब तो ओनली न्यू कीवर्ड है, तो उस केस में ओनली वन इंस्टेंस विल बी स्टोर्ड वेयर इन द हीप एरिया ओनली। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास इन जावा। सर क्या बात कर रहे हो? तो स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल क्लास है, मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रिंग वंस वी क्रिएट। एक बार स्ट्रिंग बनाई उसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज नहीं होती सर, नहीं होती। बट इफ यू ट्राई टू चेंज द स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग गॉट क्रिएटेड विथ न्यू चेंजेस। नहीं बन जाएगी, पुरानी चेंज नहीं होगी। आप लिखोगे स्ट्रिंग सिटी इक्वल टू पुणे, सिटी पुणे जाएगी एसीपी के अंदर। आपने फिर लिखा सिटी डॉट कॉन्केट मुंबई, कॉन्केट करो पुणे के साथ मुंबई, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई स्ट्रिंग फाइनल है, फाइनल मतलब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। अब क्वेश्चन होता है why string is immutable in Java? So reason is very simple. Why string is immutable? Reason is that, see, first of all, see, if you make the string is mutable, what's the problem? What's the problem? And problem is that, let's suppose we are taking a string city 1 equals to Pune, string city 2 equals to Pune, string city 3 equals to Pune. तीन वेरिएबल बनाए, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सबका पुणे पुणे है। इन द एससीपी व्हाट विल हैपन? तीन रेफरेंस एक ही पुणे को रेफर करेंगे। आपको लग रहा है तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे? इस केस में नहीं। अगर आपने लिखा स्ट्रिंग सिटी 1 इक्वल टू पुणे, भाई पुणे सबसे पहले चला गया एसीपी के अंदर। स्ट्रिंग सिटी 2 इक्वल टू पुणे, फिर पुणे नहीं, यहाँ पे रुको, वही पुणे होगा जो पहले स्टोर होता, वो रेफर करेगा सिटी 2 उसको। सिटी 3 पुणे, पुणे नहीं बनेगा, वही पुणे रहेगा, एक ही पुणे। तीन सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 तीनों रेफर करेंगे उसको। अब इस केस में देखो क्या होता है। सिटी 2 वाला बोला आई वांट टू चेंज पुणे टू मुंबई, उसको लगा चेंज करना है। इफ द सिटी 2 विल चेंज हिज सिटी, अदर सिटी विल अफेक्ट। अरे भाई सिटी 2 ने चेंज किया ना, बट सारे तो एक ही पुणे को रेफर करे थे, पुणे की जगह मुंबई लिखा, सिटी 1 भी मुंबई हुआ, सिटी 3 भी मुंबई हुआ। So in this case, other city will get impact, other city will get affect. So that's the reason string is immutable in Java. न चेंज ही नहीं होता ना, बाकी के अफेक्ट ही नहीं होंगे। That problem we can reduce by making string as immutable. So Java ने बनाया है, हम यूज करेंगे। That's so simple. So now let's go to another question, that is what is the difference between equal operator, equal relational operator, and what is the use of equals method? प्रैक्टिकल में भी मैंने सीरीज कवर किया, आप एक बार देख लेना। ये जस्ट थ्योरेटिकल कैसे बताना इंटरव्यू में, दैट्स द एजेंडा ऑफ द सीरीज। इक्वल इज ऑपरेटर which checks the memory address not an content. That means let's suppose you are creating the string s1 equal to ram, string s2 equal to ram। अब इस केस में दोनों राम एक ही जगह पे, इनका एड्रेस चेक होगा, s1 इक्वल s2, आंसर ट्रू होगा बिकॉज दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है ना भाई। राम का एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, दोनों रेफर करेंगे। बट अगर आपने ऐसा बनाया स्ट्रिंग s1 इक्वल टू राम, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, न्यू हीप में चला गया, ऊपर वाला एसी में, एड्रेस इज डिफरेंट, इन दिस केस इक्वल आपको फॉल्स देगा। दैट इज इक्वल ऑपरेटर विल चेक द मेमोरी एड्रेस, बट इक्वल्स मेथड विल चेक द कंटेंट। अब इस केस में भी आपको ट्रू मिलेगा, पहले केस में भी ट्रू मिलेगा। अगर आपने किया s1 डॉट s1 डॉट इक्वल्स s2, इक्वल्स विल चेक द कंटेंट। राम मैच हो रहा है ना भाई, मेमोरी कहीं पे भी हो, कुछ भी लेना देना नहीं है, दैट्स आंसर। Equal operator will check the memory address. If the memory address is same, true, else false. But equals method will check the content. If the content is same, ram, capital small, everything is same, true. नहीं तो false. That's it. Okay. So अभी के लिए मैं रुकता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन बचा है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, डिफरेंस इन तीनों का वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज डे 13 के अंदर। तब तक फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।